आई हैव टेकन थेरेपी। मैं रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा चैंट किया रोज। एग्जाम में जो चैप्टर आ रहा है उसका पेज नंबर भी याद होता था, बट मैं मेंस देने गई थी। बट विल यू एवर गिव फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन और शॉर्ट? क्या मैं अपनी पढ़ाई हैम्पर कर रही हूँ? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अ 400K स्पेशल वीडियो। आई कांट बिलीव आई एम शूटिंग दिस नाउ इन 2023. And also in this video, we're going to have a very candid chit chat on the topics that you've sent me. So this is not a proper Q&A video, but I have a lot of topics with me here जो मैंने note down किए हैं that you guys have sent me, and we're going to talk about it. And we'll be talking about a few of the topics that we've never talked about. So it's going to be a lot of fun. Another big announcement that I want to make is that at the end of this video, we also have a very special giveaway for you guys. So please make sure that you watch this video till the end, know the giveaway rules, and also participate in the giveaway. Now without any further ado, let's begin the video. While talking, I'm also going to be getting ready, and since festive season is coming up, I'm thinking of creating a festive look today because it'll be fun talking and getting ready. It's just my vibe. So let's start getting ready as well. I think we all will agree how much our skin gets exposed to the sun during the festive season, while attending fests, while going to shopping, roaming around the streets, and honestly, we have no time to indulge in proper treatments. But here's the twist. I've got a quick fix and found the Pond's D-Tan face wash to be my holy grail to remove tan in this festive season. And let me show you how. So first of all, I wet my face with some water and apply the Pond's D-Tan face wash on my skin. The best part about this face wash is that it is infused with the powerful combination of vitamin C and niacinamide, which helps visibly reduce your tan in a week. I just use a coin-sized amount gently on my damp face and rinse it off, and voila! Look at the shine and how it brightens my face. I've been using it since a week and I'm super happy with the results. So if you want glowing skin to shine bright in the upcoming festivities, my advice would be to include Pond's D-Tan in your festive must-haves. If you too want to try it out, the link is mentioned in the description, so go check it out. Now that I'm done prepping my skin, washing my face, let's begin with your questions. Not your questions, your topics, and let's get ready. I'm starting with a primer, and the first topic that I have is to talk about mental health. Now, mental health is a very huge topic, but the comment that I read was, I believe, mostly about my mental health and how do I actually work on it, how do I figure things out, and when things are going haywire in my life, how do I, tackle all of that. As you all know, in the past 1 month, actually not 1 month, in the past 5 months actually, जब से ये Instagram वाली चीज़ चल रही है, my mental health was really bad. I was I was crying day in and day out, especially in the past 1 week जब permanent disability का पता चला मुझे. But even before that, in these 5 months, I have always feared कि मेरा account अभी suspend हो जाएगा कि तभी suspend हो जाएगा, and it was not that good. I have taken therapy in the past 5 months. Nobody knows about it except for a few of my friends, not even my parents. मैंने किसी को नहीं बताया था because I didn't want to trouble anyone. But yes, I have taken online and offline both kinds of sessions because I was really troubled. And added to my Instagram thingy, there were a lot of other things also going on, like some things in college, some things about the degree. I have so much going on in my life that I do not share on social media. And it's not just about me. A lot of creators don't share a lot of their lives because there's fear of judgment, and बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हम refrain करते हैं from telling. My relationships with my friends and stuff, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं शेयर की है, but I was suffering from the past 5 months and it was really really difficult. And how did I deal with it? To be honest, number one thing that I've come across in these past 2-3 months, and I'm loving it, is yoga and meditation. Yoga, trust me, it helps you so much. And I'm not talking about doing asanas. I'm just saying, just chant Om 21 times in a day.
it's like magic. It works like magic, at least for me. तो I started taking yoga classes. उसका प्राइमरी रीज़न यही था कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा शांत करवाना था. ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मेरे लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेंटल हेल्थ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी, क्योंकि अगर जब तक मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, आई कांट actually work on my physical health. That was one thing that I really wanted to talk about, पर मुझे कभी मौका नहीं मिला और कभी कभार मुझे डर भी लगता था. Then I have also started to be a little more inclined towards spirituality, towards God per se, and trust me, it helps. मैंने पिछले 1 महीने में रोज़ सुबह उठ के हनुमान चालीसा चैंट किया रोज़. And my nanu used to do the same thing. He's no more, but मुझे ये चीज़ बहुत स्ट्रेंथ देती है. मैंने अभी पिछले 1 महीने में ही याद किया. उससे पहले मुझे हनुमान चालीसा याद भी नहीं थी. मैंने इस 1 महीने में याद करिया और मैं रोज़ सुबह चैंट करती हूँ. एंड ऑनेस्टली जब भी मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं टूट रही हूँ, या अब मेरा क्या होगा, या अब मैं क्या करूँगी, वॉट विल आई डू इन माई लाइफ, आई डोंट हैव एनी थिंग, ये वो, जब भी ये फालतू के ख्याल आते हैं, आई जस्ट चैंट हनुमान चालीसा और आई सिट डाउन टू चैंट ओम. इट रियली हेल्प्स गाइज. मतलब मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत हेल्प किया है. एंड इवन इफ यू आर समवन who doesn't believe in God, just trust in the energies, trust in the universe, and just chant whatever you can, and it really helps. So this was about more or less about my mental health. अभी मैं जितना शेयर कर सकती हूँ वो इतना ही है कि हाँ, पिछले 5 महीने में my mental health was effed, but now I have come to terms with it. मैंने बहुत काम किया अपनी mental health पे and I'm so proud of it. मैंने कुछ लोगों को ये लगेगा और बहुत लोग ऐसा बोलेंगे भी कि क्या है, इंस्टाग्राम ही तो था, चला गया, इट्स जस्ट अनदर प्लेटफॉर्म, नया बना लो या कुछ और कर लो, हाउ डज़ इट मैटर. बट इट डज़ मैटर. मैंने अपने फ्रेंड्स को भी यही बोल के समझाया था दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैंने 2 साल नीट के लिए पढ़ाई की, नीट निकाल लिया, अच्छी रैंक आ गई, अच्छा कॉलेज मिल गया, एंड नाउ सडनली समबडी इज सेइंग कि पेपर कैंसिल हो गया एंड यू हैव टू अगेन प्रिपेयर फॉर 2 years. दिस इज़ वॉट 3 साल की मेहनत ऑफ इंस्टाग्राम एकदम वैनिशिंग लुक्स लाइक. बहुत लोगों के लिए सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने उसमें 3 साल का हार्ड वर्क पुट इन किया था. बट ओके, एनीवेज, because I'm learning one more thing which is called detachment. मतलब basic everything is मोह माया. मतलब ये हम बहुत मजाक में बोलते हैं, बट ये एक्चुअली सच है. एक दिन सब कुछ मेरे पास है, जो सब कुछ किसी के भी पास है, वो चला जाने वाला है. Be it my YouTube, my Instagram, the money that I'm earning, the degree that I'm doing, the knowledge that I have, एक दिन वो सब vanish हो जाने वाला है. So yeah, touch wood, at this point I'm in a much better mental status and I'm so happy. And yes, that's about it. Next question or the next topic is life is unfair. So I agree. I completely agree. Sorry, मैंने अपना कंसीलर गिरा दिया. But I definitely agree with you कि life is unfair. और मैंने recently, I guess 1 महीना पहले सदगुरु का एक शॉर्ट देखा था जिसमें ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग दैट येस, लाइफ इज़ अनफेयर, बट वॉट कैन वी डू अबाउट इट? वी कैन डू नथिंग अबाउट इट. क्या होता है कि जब हमारे साथ बुरा होता है तो हमें लगता है कि लाइफ इज़ अनफेयर, जब हमारे साथ फालतू में बुरा हो रहा होता है. पर कभी कभार जस्ट नोटिस इन योर लाइफ, कभी कभार ऐसे भी होता है कि हमने किसी चीज़ के लिए उतनी मेहनत नहीं करी होती है जितनी रिक्वायर्ड थी, पर फिर भी हमें वो चीज़ मिल जाती है. तब हम नहीं बोलते कि लाइफ इज़ अनफेयर, तभी हमें बहुत अच्छा लगता है, तब वी डोंट नोटिस दिस थिंग कि लाइफ इज़ अनफेयर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, क्या था कि मैं इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल दूंगी अगेन. सो फॉर मी, हाउ इज़ इट लाइक कि जब मेरा अकाउंट मई में सस्पेंड हुआ था, आई हैड समथिंग अराउंड 66,000 फॉलोअर्स, और तभी मुझे हमेशा लगता था कि आई एम वर्किंग सो हार्ड बट द नंबर्स आर नॉट इंक्रीजिंग ऑन माई इंस्टाग्राम. मैं ऑलमोस्ट जितनी मेहनत यूट्यूब पे कर रही थी उतनी ही मेहनत अपने इंस्टाग्राम पर भी कर रही थी, बट जितने रिजल्ट्स मुझे यूट्यूब पे मिल रहे थे, द ग्रोथ दैट आई वाज गेटिंग, वो मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रहा था. तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी दैट वाई इज़ इट, वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर. जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, उसके बाद जब वो वापस आया, विद इन 2 or 3 months
माई इंस्टाग्राम हिट 100K एंड द ग्रोथ मतलब इट एक्चुअली इंक्रीज्ड अ लॉट उस टाइम पे. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी ग्रेटफुल, पर वो इतने से स्पैन ऑफ टाइम में जो ग्रोथ मुझे मिली थी ना, मैंने उस स्पैन ऑफ टाइम में उतनी मेहनत नहीं करी थी. वो मेरी जो पिछले 3 साल की मेहनत थी, जितनी सारी रील्स मैंने तब डाली हुई थी, most of them, a lot of them actually went viral. A lot of them actually worked on Instagram, जो तब वर्क नहीं करी थी पर अब वर्क कर गई, जिनकी वजह से आई गॉट माई व्यूज़. तो जब समय अच्छा चल रहा होता है ना, तब हम बोलते हैं हाँ मैंने मेहनत करी इसलिए मुझे रिजल्ट्स मिले. बट जब समय नहीं अच्छा चल रहा होता, तब हम हमेशा भगवान को ब्लेम करते हैं कि यार आप मेरी मेहनत नहीं देख रहे हो, आप मुझे हेल्प नहीं कर रहे हो. सो इट्स नॉट रियली लाइक दैट. कई बार हमें अनफेयर एडवांटेजेस भी मिलते हैं लाइफ में, बट हम उनको अक्नॉलेज नहीं करते हैं, आई बिलीव, उतना ज़्यादा. सो या दैट्स वन थिंग. नाउ देर इज़ अ वेरी पेक्यूलियर क्वेश्चन जो मुझे पहली बार मिला है in my so many years of making YouTube content, that what is one unusual skill that you have? I believe it's not unusual, but it's something that I'm very grateful and happy about, and I don't think ये बहुत लोगों को पता है, which is कि मुझे चीज़ें याद बहुत जल्दी होती है. I mean that pretty much explains me being the topper kid types. बट येस, टच वुड, दिस इज़ वन थिंग. ये मेरे पापा भी मुझसे बहुत बार कहते हैं. एंड जहाँ पे मैं ट्यूशन लेती थी, तो वो जो ट्यूशन वाली दीदी थी वो भी मुझे ऐसे बोलती थी कि ये तो तोता है. आई लिटरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 7th 8th में मुझे मतलब जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले एग्ज़ाम में जो चैप्टर आ रहा है उसका पेज नंबर भी याद होता था, कौन से पेज पे क्या दिया हुआ है ये भी याद होता था. So yeah, that was very unusual. I mean, comparing to other students, क्योंकि सब मुझे देखते रहते थे और बोलते थे यार ये तो पता नहीं क्या है, ये कहाँ से रट के आती है एंड स्टफ. बट या टच वुड, मुझे चीज़ें अच्छे ढंग से और जल्दी याद होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, जितना मैंने नोटिस किया है. सो दिस इज़ वन अनयूजुअल थिंग दैट आई हैव इन मी. दूसरी अनयूजुअल हैबिट या स्किल या कुछ भी कह लो, वो ये है दैट आई एम वेरी 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 ऑब्जर्वेंट. मतलब व्हेन आई मीट समवन न्यू, मैं उनको ऊपर से नीचे तक पूरा ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि यू नो हाउ हैव दे स्टाइल देयर हेयर, व्हाट आर दे वेयरिंग, इन्होंने कौन से जूते पहने हैं, हैव दे पेंटेड देयर नेल्स और नॉट, इनके नेल्स बड़े हैं या छोटे हैं, या you know this person walks a little differently, this person does this very often. और जब वो इंसान चला जाता है ना, like this has happened with me a lot, कि मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ आपने देखा उस लड़की, ये कल ही हुआ है इनफैक्ट, हम लोग एक स्टोर पे गए थे और मैंने कहा मम्मी आपने देखा उस लड़की की मेहंदी कितनी ज़्यादा प्रिटी थी. मम्मी ने कहा तुम ये सब क्यों नोटिस करती हो. एंड आई मीन आई कॉन्ट हेल्प इट, बट ये मेरे साथ होता है. आई नोटिस अ लॉट. एंड ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई. एंड दिस वर्क्स टू माई डिसएडवांटेज ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नोटिस करती हूँ ना, तो मैं इन लाइफ ऑल्सो बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ कि कोई मुझसे क्या बात बोल रहा है, मैं उसको ओवर एनालाइज भी करती हूँ. दैट अच्छा उसने ऐसे बोला तो ऐसे क्यों बोला, या you know XYZ. So yeah, that makes me an overthinker and over analyzer also. Next topic that we have is an unusual story about me, and यहाँ पे मैं खुद से ही mention करना चाहती हूँ the story that I wanted to share, और मुझे नहीं लगता ये मैंने कभी भी share किया on the internet. So this is the first time I'm sharing it. मैंने पहले ये बताया हुआ है that in 2020 मैं JEE देने गई थी. So if you do not know, JEE means इज़ उसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बट इट्स एन एग्ज़ाम जो देते हैं फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जिससे आपको NITs में एडमिशन मिलता है. एंड देन वंस यू क्लियर दैट यू अपीयर फॉर JEE एडवांस, जिससे आपको IITs में एडमिशन मिलता है. सो या दैट्स इट. बट आई वॉज नॉट अ मैथ्स किड, ओके, आई वॉज अ PCB किड. बट मैं मेंस देने गई थी, नॉट फॉर मतलब टाइम पास, मतलब हाँ सॉर्ट ऑफ फॉर टाइम पास ओनली. बट क्या था कि मेंस उसी साल से 2 साल होना स्टार्ट हुआ था, एंड मुझे देना था मेंस बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू सी कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है. आई जस्ट गेट अ मिरर, 2 minutes. यस, गॉट इट. हाँ, तो मुझे ये देखना था कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है
एम आई डूइंग अप टू द मार्क और नो, क्योंकि मेरा पूरा फुल सिलेबस सब कुछ हो चुका था, हमारे टेस्ट हो चुके थे, जान की बात है, इसके बाद बस हमारे बोर्ड शुरू होने वाले थे। एंड लकीली तभी मेरी मम्मी भी आई हुई थी और मैंने पापा से बहुत लड़ के जेई के लिए रजिस्टर किया था, क्योंकि पापा तो मुझसे बोल रहे थे क्या ज़रूरत है फालतू टाइम वेस्ट करने की, इससे अच्छा अपनी पढ़ाई करो एंड वाई यू वेस्टिंग योर टाइम ये वो, बट आई वाज लाइक जस्ट लेट मी गिव इट ना, आई नो कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ और मैं नीट में कैसे परफॉर्म करूँगी। सो देन ही अग्रीड और हमने दिए, मतलब मैं गई देने। तो तभी द सेंटर वॉज इन कोटा ओनली, क्योंकि मैं कोटा में ही रहती थी तब। कोटा क्योंकि स्टूडेंट टाउन है एंड सारे बच्चे किसी ना किसी कोचिंग में एनरोल्ड होते ही हैं, तो मैं गई वहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड, वहाँ पे मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी एंड उसने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड मी वाज कि व्हिच कोचिंग आर यू फ्रॉम। आई वाज लाइक आई एम फ्रॉम एलन, सो दैट वाज द कोचिंग आई वाज एनरोल्ड इन बैक देन। तो शी वाज लाइक अच्छा आई एम आल्सो फ्रॉम एलन, व्हिच बैच आर यू फ्रॉम। अब यहाँ पे मैं फंस गई, तो मैंने उसे बताया कि यार आई एम नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग सेक्शन, मैं मेडिकल की हूँ। तो शी वाज लाइक ओके तो तुम यहाँ, मैंने कहा मैं बस ऐसी अपनी प्रेपरेशन चेक करने पेपर देने आई हूँ। शी वॉज लुकिंग एट मी लाइक मैं कोई एलियन हूँ या कुछ, बट ओके। उसके बाद फिर आई वेंट एंड आई सैट, तो क्योंकि जेई कंप्यूटर बेस्ड होने लगा था उस साल से, तो हमें हमारे कंप्यूटर्स अलॉट हो गए और मैं वहाँ जाके बैठ गई। अब मैं अपने मन में सोच के आई थी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी 11th और 12th की, तो मुझे पता था कि मुझे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो मेरे पास 3 घंटे का टाइम था फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सॉल्व करने के लिए। अब जब हम वहाँ बैठे, बिफोर द एग्जाम वॉज स्टार्टेड, तो देर वॉज वन गर्ल जो मेरे बगल में बैठी थी और उसके भी बगल में एक और लड़की बैठी थी एंड दे बोथ वर लाइक गुड फ्रेंड्स। तो वो मुझसे पूछने लग गए व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैंने उन्हें बताया, उन्हें भी मैंने बता दिया कि यार मैं बायो वाली हूँ। तो इनिशियली शी थॉट, उससे मुझसे पूछा अच्छा यू हैव PCMB। मैंने कहा नहीं नहीं आई जस्ट हैव PCB। तो शी वॉज लाइक तुम यहाँ क्यों आई हो। तो मैंने कहा कि यार आई जस्ट वॉन्ट टू चेक माई प्रेपरेशन, इसलिए मैं बस देने आई हूँ। एंड देन शी ऑलमोस्ट स्टार्टेड लाफिंग एंड मेकिंग फन ऑफ मी एंड शी वॉज लाइक तुम्हें पता है ना यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तुम्हें पता है ना कि जे इज़ वे मोर डिफिकल्ट दैन नीट एंड स्टफ। तो वो बेसिकली मेरे सामने थोड़ा सा अपना शो ऑफ करने लग गई, बिकॉज एनी वे मैथ्स वाले बच्चे सोचते हैं कि हम बायो वाले बच्चों से सुपीरियर हैं एंड स्टफ। तो मैंने उसे ज़्यादा जवाब नहीं दिया एंड पेपर स्टार्ट हो गया। नाउ व्हेन द पेपर स्टार्टेड, क्योंकि मेरे पास कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम था, क्योंकि मैं मैथ्स नहीं करने वाली थी, मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करने थे, मैं बहुत रिलैक्स होकर पेपर कर रही थी और उन्होंने हमें एक शीट भी दी थी जिसमें मैं कैलकुलेशंस कर रही थी और सब कुछ। एंड दैट गर्ल जो मेरे बगल में बैठी थी वो मुझे घूरने लग गई, क्योंकि उसे ऑब्वियसली लग रहा था कि इसे कुछ नहीं आता होगा इन द पेपर। बट मेरा पूरा पेपर भर गया उन कैलकुलेशन से और मैंने दूसरा पेपर मांगा कि मुझे एक नया पेपर चाहिए एंड शी वॉज शॉक्ड। मुझे वो ऑलमोस्ट अपने पूरे पेपर में मुझे ही देखे जा रही थी। एंड आफ्टर द पेपर हैपेंड और हम बाहर निकलने लगे, वो भागती भागती आए मेरे पास कि हाउ डिड योर पेपर गो, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, तुम कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हो, ये वो। सो इट वॉज फनी। देन आफ्टरवर्ड्स एक हफ्ते बाद कुछ रिजल्ट आया तो मेरा 98.3 परसेंटाइल आया था। एंड मतलब आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने भी जेई दिया था एंड ही टोल्ड मी कि इतने परसेंटाइल पे तुझे ईजिली कोई भी NIT या कुछ भी मिल जाएगा, वट एवर यू वॉन्ट। बट मैं ले ही नहीं सकती थी बिकॉज ऑब्वियसली मैं बायो वाली थी और काउंसलिंग में बैठने के लिए आपको मैथ्स चाहिए होता है। बट ऑनेस्टली उस दिन मुझे बहुत अकम्पलिश्ड फील हुआ था और उस दिन मुझे लगा था कि या बिकॉज ऑब्वियसली ये तो होता ही है दैट मेन्स इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट देन नीट, क्योंकि उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्लाइटली टफ आती है। बट मैं फुल्ली NCERT टाइप प्रिपेयर होके गई थी कि जो NCERT में लिखा है बस उतना ही पढ़ के जाऊंगी एंड लकीली आई गॉट अ गुड परसेंटाइल। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई गेट अ लॉट ऑफ टाइम्स, विच इज़ दैट विल यू एवर गिव फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन और शॉर्ट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक बड़ा सा नो देना चाहती हूँ दैट नो आई डोंट वांट टू परस्यू कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम। वन बिकॉज क्योंकि मैं शुरू से कंटेंट को पार्ट टाइम करती आई हूँ, तो आई थिंक बाय नाउ आई हैव फाउंड आउट अ गुड बैलेंस कि कंटेंट को मेरे फुल टाइम करियर के साथ या मेरे जो भी मैं कर रही हूँ उसके साथ कैसे मैनेज करना है। नंबर 2 दैट आई फील इज़, जो मैंने अभी इंस्टाग्राम के साथ रियलाइज़ भी कर लिया, एंड एज हार्श एज इट साउंड्स, दैट a business or something in the media industry which is creative or on social media
इट इज़ ऑलवेज वेरी टेम्पररी, एंड यहाँ की जो इनकम होती है दैट्स वेरी वेरिंग. किसी महीने यू अर्न अ लॉट, किसी महीने यू माइट नॉट इवन अर्न एनीथिंग. देन टॉकिंग अबाउट योर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो वेरी टेम्पररी. कभी क्या हो जाए, क्या चला जाए, कुछ पता नहीं चलता है. So that is one thing. Another thing is that I really have interest in what I'm doing. I like being around patients. I like going to the hospital. I like helping people out, and I know that I have the skill and the ability to become a doctor, so then why not? And if I'm being able to balance both the things nicely, I know it gets difficult a lot of times. Like, I know क्या मुझे मतलब मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ every now and then, but still I feel कि मुझे इन दोनों वर्ल्ड्स का मज़ा उठाने में बहुत मज़ा आता है. प्लस क्या होता है ना, अभी जैसे मैं कंटेंट कर रही हूँ तो आई डू इट फॉर माई पैशन, फॉर माई फन, फॉर बीइंग हैप्पी. पर अगर कोई चीज़ आप फुल टाइम ले लेते हो एज अ करियर, उसे आप मतलब उसे आप करने की कोशिश करते हो ना, तो वो जो फन होता है ना, दैट फन एलिमेंट अटैच टू इट गोज अवे, बिकॉज नाउ इट्स जस्ट इट्स बिकम योर वॉट योर कप ऑफ टी, योर ब्रेड एंड बटर. तो अब आपको पैसे कमाने के लिए भी वही करना है, आपको मज़े के लिए भी वही करना है. तो एक मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर वो जो सेंस ऑफ क्रिएटिविटी है ना, ऊप्स, लिपस्टिक टूट गई, तो वो चला जाएगा. लास्ट, नो, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली जिसकी हम बात करेंगे, विच इज़ फोमो. सो दिस इज़ अ रियली गुड टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, बिकॉज फोमो इज़ समथिंग दैट वी एज जेनजीज, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर जेनजीज. तो हम जेनजीज ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हर दिन कभी कभी फोमो से गुजरते हैं. तो फोमो इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, अ वेरी कॉमन फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस. FOMO for millennials and for people who do not know is fear of missing out. In simple terms, it's like आपको लगता है कि मैं I'm not fitting into a lot of places. कभी फॉर एग्जाम्पल इन माई केस क्या होता है कि मुझे काम भी करना है, मुझे एडिटिंग भी करनी है, मुझे वीडियोज़ भी बनाने हैं. नाउ इफ़ सम टाइम माई फ्रेंड्स आर गोइंग आउट, देर आस्किंग मी कि चल बाहर चलते हैं, मुझे कंपल्सिवली मना करना पड़ता है कि यार अभी तो मुझे वीडियो एडिट करना है. तो मुझे कभी कभी मेरा सबसे बड़ा फियर ऑफ मिसिंग आउट यही है. मुझे लगता है कि यार आई एम not being able to spend as much time as a lot of other college students do with friends, or just chilling, just having fun. और उसकी वजह से of course मुझे कभी कभी ये भी लगता है that क्या मैं अपनी पढ़ाई हैम्पर कर रही हूँ, या अगर मैं यूट्यूब नहीं कर रही होती तो शायद आई वुड हैव बीन स्कोरिंग मोर, और ये वो. सो देर आर अ लॉट ऑफ फियर्स ऑफ मिसिंग आउट जो हम जेनजीज को होता है. कभी कभी फ्रेंड्स का फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, कभी कभी काम का फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है. हमें लगता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स लाइफ में अच्छा कमा लेंगे, सेटल हो जाएंगे, बट हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, हम ऐसे ही रह जाएंगे. द बेस्ट वे टू डील विद फोमो इज़ नंबर वन टू टेल माई सेल्फ दैट वी आर ऑल ऑन डिफरेंट जर्नीज़. हम लोग की सबकी जर्नी अलग है, एंड हम एक दूसरे के लिए बस उस जर्नी का एक पार्ट हैं. मतलब वी आर जस्ट को ट्रैवलर्स, बट हम सबकी मंजिल अलग है. वी ऑल वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. सो लाइक इस चीज़ पे दुखी होना कि यार वो लोग तो घूम रहे हैं पर मैं नहीं घूम पा रही, या वो लोग लाइफ में सेटल हो जाएंगे पर मैं नहीं हो पाऊँगी, वो लोग अभी लाइफ में इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं पर मैं शायद नहीं कमा रही हूँ. सबसे पहले तो वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ obviously temporary, because nothing is constant but change. So if you really want, you can change whatever is happening right now, number one. And number two, whatever is happening for a reason. It is there to give you a learning. जब भी इंस्टाग्राम हुआ था, आई एम सॉरी, आई एम ब्रिंगिंग इट अगैन एंड अगैन, बट क्योंकि अभी करंटली मेरी लाइफ में चल रहा है, तो मुझे इतने सारे स्वीट लोगों के emails आए. A lot of you guys only emailed me saying कि you have a lot more to do, and I'm sure this has happened to you for a good reason. Probably God wants you to focus on something else, इसलिए उन्होंने अभी आपसे अपना इंस्टाग्राम छीन लिया है एंड वॉट नॉट. एंड ये मैंने लास्ट टाइम जब मेरा इंस्टाग्राम गया था तो ये मैंने फील भी किया था दैट इट हैपन टू मी फॉर अ गुड रीज़न.
सो या आई एम जस्ट टेकिंग इट इन दैट वे, और मैं अपने फोमो को भी यूजुअली उसी वे में लेती हूँ. एंड इफ़ यू थिंक यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट एज मच, यू शुड कंसिडर थेरेपी. एंड प्लीज़ डोंट थिंक कि थेरेपी लेना या किसी से हेल्प लेना या किसी के सामने रो देना इज़ वीक और इज़ कावर्ड. इट्स वेरी ब्रेव. बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली अपने इमोशंस खुल के सामने वाले को बता पाते हैं या ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे हेल्प चाहिए. So do that, it'll help you. Next, and probably the last and a very interesting question that I'm going to take is AI in medicine. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक्चुअली कमेंट सेक्शन में बहुत सारा विवाद भी हो गया था. इस पर्टिकुलर कमेंट पे कुछ 20-22 रिप्लाइज मिले थे मुझे जब मैंने वो पढ़ा था. एंड मैं सारे रिप्लाइज पढ़ के हंस रही थी कि ओके, एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस. एंड मतलब प्रॉपरली लड़ाई स्टार्ट हो गई थी इन द कमेंट सेक्शन. एंड मेरे व्यूज़ फॉर AI इन मेडिसिन आर वेरी इन फेवर ऑफ इट, क्योंकि हम जितना भी इस चीज़ को डिनाई कर लेना, AI बहुत जल्दी टेक ओवर करने वाला है. नॉट जस्ट corporate jobs but even medicine. Why I tell you, because I'm not saying कि कुछ कुछ 5-10 साल बाद आप AI को दिखाने जा रहे होगे instead of doctors. No, that's not gonna happen in the recent future. Change is always very slow and very progressive. धीरे धीरे होता है change, जैसे ये change. So what I feel is, to be honest, कि अगले 5 से 10 सालों में at least AI will be taking up a lot of jobs in the fields of radiology, in the fields of pathology. Already ऐसी बहुत हवा चल रही है कि AI में हम slides feed कर सकते हैं. For example, tuberculosis is a very widespread condition in India. So what we can do is we can tell AI कि tuberculosis का slide if you see, या किसी और डिजीज़ का स्लाइड इफ़ यू सी, तो उसका ऑर्गेनिज्म ऐसा दिखता है, हमें एसिड फास्ट बैसिला ऐसे दिखेंगे ऑन माइक्रोस्कोप. एंड वी फीड अ लॉट ऑफ डेटा इनटू AI. उसके बाद व्हेन वी गिव AI अ लॉट ऑफ स्लाइड्स टू टेस्ट, तो AI मास टेस्टिंग कर सकता है एंड इट विल बी मोर एफिशिएंट देन ह्यूमंस, फास्टर देन ह्यूमंस, हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे. सो इन दैट सेंस येस, AI विल डेफिनेटली एंटर मेडिसिन initially to help doctors to come to a diagnosis, to help them get radiological examination done. Radiological examinations like x-ray, MRI, ये सब करने के लिए AI हमको facilitate कर सकता है. and also to interpret their reports, क्योंकि x-rays और ये सब हम बहुत सारे feed कर सकते हैं into AI. हम उनको उनके interpretations AI को बता सकते हैं कि अगर ऐसा है, ऐसा फ्रैक्चर दिख रहा है तो मतलब ये है, ऐसा है, ये वाली हड्डी टूटी हुई है तो इसका फ्रैक्चर है. एंड वी कैन एक्चुअली लेट AI वर्क फॉर आवरसेल्व्स. हो सकता है अगले आने वाले 20-25 साल में AI ऑल्सो स्टार्ट्स प्रिस्क्राइबिंग, आई डोंट नो. बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आज की डेट में, बिकॉज आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई ये भी नहीं कह सकता था कि फ़ोन्स हमारी लाइफ का इतना इंटीग्रल पार्ट बन जाएंगे. जब मेरी मम्मी MBBS कर रही थी तब वो लोग लिटरली अपने घर पे भी लैंडलाइंस पे बात करते थे, और वो भी हफ्ते में कभी एक बार. आज की डेट में आपका जब मन करे, जिससे मन करे, जोन सी कंट्री में मन करे, आप फ़ोन लगाओ, जितनी देर बात करो. It's all so easy and so efficient. So yeah, that was about this video. I hope you enjoyed this one, and if you did, do not forget to like, share, comment. But wait, yes, I know what you're looking for. हमारा गिव अवे. इसमें what you have to do is to participate. You have to do a few small acts of kindness. It could be anything. It could be helping someone, it could be you know it could be helping the environment in some way. आपने कुछ भी ऐसा किया हो which is an act of kindness या which is good, which has helped someone, anything of that sort. Just write up your story, send me on the email mentioned here. I will also mention all the rules in the description. Like this video, subscribe to my channel, and do let me know in your emails that what did you do. The 4 or 3 most
heartwarming stories that I like the most will be getting 3 beautiful hampers from my side. This is a Diwali special giveaway, so the hampers will also be Diwali special. And I really want to thank you guys because अगर आपको याद हो तो इन द स्टार्ट ऑफ दिस मंथ जैन में मैंने एक 150 के स्पेशल Q&A बनाया था, ऐसा ही था सिमिलर। एंड उसमें मैंने बोला था कि मेरा टारगेट है कि मुझे इस साल 250 के सब्सक्राइबर्स रीच करने हैं। एंड अभी अक्टूबर चल रहा है एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 400 के। सो आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। बहुत बहुत कुछ दिया है मुझे इस प्लेटफॉर्म ने and I will always be grateful for that. So yes, that's the end of this video. Do not forget to take part in the giveaway. It's gonna be a lot of fun. And वो सारी heartwarming stories मैं share भी करूँगी YouTube पे, probably in a community post. And please watch out for that community post ताकि you know if you have won, and whatever emails I get मैं उन emails पे भी reply करके winners को बता दूँगी. You can send me your name, address, phone number, everything so that I can send you the beautiful Diwali hampers. So yeah, happy Diwali in advance and I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.